Hello everyone, my name is Himanshi. In this video, we are starting with Lucent GS and it will be helpful for almost every government exam. Okay, so we will start with the very first, that is Indian history. Okay, we will start with Indian history and then we will move towards the other topics like polity, economics. Okay, so we will start with very first, that is ancient India. So in ancient India, what we will study? एंशियंट इंडिया. देखिए सबसे पहले जो एंशियंट इंडिया में आता है वो है हरप्पन इंडस सिविलाइजेशन. ओके, हरप्पन सिविलाइजेशन इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज स्टडी इन एंशियंट इंडिया. एंड ये जो टाइमलाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये क्या है? 2500 BC to 1750 BC, before common era. Okay, so this is the very broad timeline which you have to remember. You do not have to go into very specific timeline, but a broad understanding is required of every timeline in history. Okay, so Harappan Indus civilization from 2500 BC to 1750 BC. So Indus Valley civilization, as you already know, is the oldest urban civilization. Okay, so इसमें we need to understand that there are some important things which you have to study. Okay, there are useless information also in this book, so you do not have to go into those details but read only the important ones. So the important thing, the first important thing about Indus Valley is its timeline, first of all. Okay, and how do we get to know the timeline? By carbon 14 dating. And John Marshall was the first scholar जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को कॉइन किया था. जॉन मार्शल. ओके, जॉन मार्शल आपको याद रखना है. तो जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो मोस्टली कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान पार्ट में और नॉर्दर्न इंडिया में है. ज़्यादा साउथ में नहीं है, मोस्टली नदर्न इंडिया में है. ओके, एंड इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द साइट्स, जो साइट्स है इंडस वैली की, दे आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, वो है मांडा. पहले क्या हुआ करती थी? रोपर. ओके, जो कि सतलज नदी के किनारे थी, लेकिन अब जो है वो मांडा है, जो कि चेनाब नदी के किनारे है, जम्मू एंड कश्मीर में. सदर मोस्ट कौन सी है? दायमाबाद इज इन महाराष्ट्र. ईस्टर्न मोस्ट साइड इज आलमगीरपुर ऑन द बैंक्स ऑफ हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश. एंड वेस्टर्न मोस्ट इज सुतका गैंडोर इन पाकिस्तान. ओके, सो दीज 4 sites you have to remember. Now next thing is there are some sites which are very important because they are port cities. वो port cities है, इसीलिए उनकी importance बढ़ जाती है. और port cities कौन कौन सी हैं? लोथल, सूतका गैंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट एंड कुंटाशी. These are the 5 port cities: लोथल, सूतका गैंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट एंड कुंटाशी. उसके बाद हमें जो साइट्स पढ़नी है, और क्या पढ़ना है कि जो साइट्स है कौन कौन सी रिवर पर लोकेटेड है और कौन सी कंट्री में है. तो 2 ही कंट्री हैं, पाकिस्तान और इंडिया. सिर्फ 3 साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में है, उसके अलावा जितनी भी साइट्स है आपकी इंडिया में है. ओके, तो वो 3 साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, जो कि है हरप्पा, मोहनजोदारो एंड चानुदारो. हरप्पा is on the banks of Ravi river. Okay, Harappa is very important site and it is on the banks of river Ravi in the country Pakistan. Mohenjo-daro is on the banks of Indus, again in Pakistan. Chanudaro on Indus river, Pakistan. So these 3 sites are very important: Harappa, Mohenjo-daro and Chanudaro. Harappa is on the banks of Ravi and Mohenjo-daro on the banks of Indus and Chanudaro also. Okay, now all the other
The remaining sites, they are in India. Okay, Lothal is very important. It is in Gujarat on Bhogava river. Kalibanga means the bangles of black color. Kalibanga is in Rajasthan on the banks of Ghaggar river. Banavali is in Haryana, Ghaggar river. Dholavira is in Gujarat in on Luni river. Okay, and there are also some archaeological finds which you do not have to remember because it's a very big list which you cannot remember, right? So leave it. Now, so Mohenjo-daro, what you have to remember is Mohenjo-daro. What is Mohenjo-daro? It is the largest site of Indus civilization. अगर हम पूरी इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो जो मोहनजोदारो है, इट इज़ द लार्जेस्ट साइट. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन साइट, अगर इंडिया में सबसे बड़ी इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो वो है राखीगढ़ी. ओके, राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ी साइट है इंडिया में, बट इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदारो. ओके, कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच आर इनकी टाउन प्लानिंग काफ़ी इम्प्रेसिव थी. जैसे कि ग्रिड सिस्टम पैटर्न था. ओके, ग्रिड सिस्टम में ये जो टाउन है वो प्लान किया गया था. व्हाट इज़ ग्रिड सिस्टम? द लाइक दिस इज स्ट्रीट एंड होम्स आर लाइक दिस. ओके, इसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं. दिस इज ग्रिड पैटर्न, दिस इज द मेन रोड एंड these are the streets. We call it grid system. एंड बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था. ओके, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था कंस्ट्रक्शंस में. ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था. फोर्टिफाइड सिटाडेल था. सो दीज आर सम वेरी कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ दिस इज सुरकाटोड़ा. वट इज़ यूनिक अबाउट सुरकाटोड़ा? सुरकाटोड़ा के बारे में जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि ये इकलौती ऐसी साइट थी जहाँ पर आपको हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं. बाकी किसी भी साइट पर हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिलते हैं. सो दिस इज़ वाई दिस साइट इज़ यूनिक फॉर द फैक्ट दैट इट हैज़ रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स. ओके, दिस यू शुड रिमेंबर. ओके, अदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जो जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रही हूँ वो आपको याद नहीं रखनी है बिकॉज दीज आर कॉमन थिंग्स. ओके, तो ये जो लायन है, देखिए लायन बहुत सारे एनिमल्स थे जैसे कि शीप है, गोट है, कैमल, बफेलो, इवन टाइगर. दे वर नोन टू द पीपल ऑफ IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट लायन वॉज नॉट नोन टू देम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लायन था उसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी. दे वर नॉट नॉलेजेबल अबाउट एन एनिमल कॉल्ड लायन. ओके, and Indus Valley civilization, they were trading with other civilizations also. वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, बहराइन के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो काफ़ी फ्लरिशिंग ट्रेड चलता था उन लोगों का. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. देखिए लोथल क्या है, गुजरात में एक साइट थी. ठीक है, एक पोर्ट सिटी है लोथल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक एंशियंट पोर्ट है इंडस सिविलाइजेशन का. ओके, द चीफ मेल डीटी, यानी कि उनके जो भगवान थे वो मेनली किसकी पूजा करते थे? पशुपति महादेव की. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पशुपति महादेव की पूजा करते थे. पशुपति माने कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. एंड जितनी भी आपको उनके कॉइन्स या फिर सील्स मिलेंगे उस पर आपको पशुपति महादेव का स्ट्रक्चर मिलेगा. सो दैट इज़ वाई वी से दैट उनका जो मेल डीटी थे, चीफ मेल डीटी, वो थे पशुपति महादेव. ओके, सो आपको हरप्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था. इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू कैन नॉट रिमेंबर. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू वैदिक कल्चर. ओके, वैदिक कल्चर देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक तो अर्ली वैदिक और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड. ओके, एक है अर्ली वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड.
अब आपका जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होता है 1750 बीसी में, उसके बाद से अब वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला, मतलब इसमें दोनों ही कंबाइन है आपका लेटर और अर्ली वैदिक। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, वैदिक कल्चर यानी कि अर्ली और लेटर दोनों है इसमें, 1500 से 600 बीसी तक ये चलेगा। ओके, नाउ देयर हैज बीन सम थ्योरीज जिसमें माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसे वैनिश हो गई, कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई, राइट। बट जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड व्यू है वो ये है कि जो आर्यंस थे उन्होंने इन्वेड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ओके, एंड दैट इज़ हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इट गॉट destroyed. So Aryans invasion, it is the most accepted one theory. Okay, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको, वैदिक लिटरेचर पढ़नी है। ठीक है, वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैदिक लिटरेचर यानी कि आपको एक एविडेंस देता है किसका, वैदिक सोसाइटी का, क्या क्या वो लोग फॉलो करते थे उस सोसाइटी में, वैदिक लिटरेचर हमको वो एविडेंस देता है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो वैदिक लिटरेचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए ये ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा क्या है, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ओके, वैदिक एज का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेदा। वो कंपोज किया गया था तब जब आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब। तो वैदिक लिटरेचर में 4 लिटरेचर हैं, जो है संहिता या फिर जिनको हम वेद भी बोलते हैं, संहिता या फिर वेद बोलते हैं। दूसरा है ब्राह्मणास, थर्ड है आरण्यका और फोर्थ है उपनिषद्स। ओके, सो दीज are the 4 literary productions. What are these? Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. Now, Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation from word of mouth. जिस टाइम पर ये जो वेद मतलब के ओरिजिनेट हुए थे, वो कैसे ओरिजिनेट हुए थे और कैसे पास ऑन हुए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज़ थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, उस टाइम पर कुछ ऐसा रिटर्न में नहीं था, लोग बोलकर जो है ये जो वेद थे उनको लोगों को सुनाया करते थे और ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहे, और इसीलिए इसको बोला जाता है श्रुति। ओके, श्रुति मतलब टू है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर कौन सी है, वेद। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके वेद हैं, इनको हम अपौरुषेय भी बोलते हैं। अपौरुषेय इसलिए बिकॉज ये गॉड गिफ्टेड है, इनको किसी इंसान ने नहीं लिखा है, बट दीज आर गॉड गिफ्टेड। ओके, सो देर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेद है, ऋग, सम, यजुर एंड अथर्व, एंड दीज 3 एक्सेप्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद को अगर हटा दिया जाए तो ये जो 3 वेद हैं इसको हम वेद त्राई बोलते हैं, यानी कि ट्रायो ऑफ वेदास। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 4 वेद हैं ये आपको याद होने चाहिए, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ओके, ऑफ द 4 वेदास जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। और ऋग्वेद के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो ऋग्वेद है उसमें 1028 टाइम्स है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1028, दिस इज 10, 8 + 2 10, 1028 times. Okay, 1028 times are there in ऋग्वेदा। ऑल राइट, और इसको हमने डिवाइड किया है 10 मंडल्स में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो 1028 टाइम्स है और 10 मंडल्स हैं इसमें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1028 टाइम्स और 10 मंडल्स। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वेदा विच इज सामवेदा। सामवेदा क्या है, ये बुक ऑफ चैंट्स है। ठीक है, इट इज अ बुक ऑफ चैंट्स। ऑल हाइम्स एक्सक्लूडिंग 75 वर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा।
The hymns of Samaveda were recited by Udgatri. This Veda is important for Indian music. इंडियन म्यूजिक के लिए ये वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड है यजुर्वेदा. यजुर्वेदा क्या है? बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स. ये एक रिचुअल वेदा है. अगर कोई सेक्रीफिशियल प्रेयर करनी होती है तो यजुर्वेद की हेल्प ली जाती है, बिकॉज इसी में सब कुछ लिखा गया है. ओके. फोर्थ वन इज अथर्ववेदा. इसमें मैजिकल फॉर्मूले दिए गए हैं अथर्ववेदा में. ये फोर्थ और लास्ट वन है. इसमें चार्म्स और स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिसीजेस के बारे में मेंशन किया गया है, और बहुत लंबे टाइम तक इसको इंक्लूड नहीं किया गया था वेदा में. ओके. अब देखिए, जो दूसरा टेक्स्ट है वेदों से हटकर, वो है ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स क्या होते हैं? ये एक्सप्लेनेशन देते हैं. जो भी वेदों में हाइम्स दिए गए होते हैं उसको ये एक्सप्लेन करते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं. और ये कैसे लिखे होते हैं? प्रोज और रिचुअलिस्टिक नेचर में लिखे हुए होते हैं. ओके. तो ये एक्सप्लेन करते हैं. वेदों में जो हाइम्स लिखे हुए होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन होती है ब्राह्मण्स. ओके. तो हर एक जो वेद है ना, उसके कुछ सेवरल ब्राह्मण्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं. जैसे कि ऋग्वेदा है तो उसका ब्राह्मण होगा ऐत्रेय एंड कौशिकी सांख्या ब्राह्मण. समवेदा का पंचविश, शतविंश, चांडोग्य और जैमिन्य. यजुर्वेद शतपथ एंड तैतर्य, और अथर्ववेद का गोपथा. आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लेना है. नाउ थर्ड वन वॉज आरण्यका. अब आरण्यका क्या होता है? आरण्यका उनके लिए लिखा जाता है जो कि हर्मिट्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स उस टाइम पर जंगल्स में रहते थे उनके लिए जो आरण्यका है वो लिखा जाता था. और ये क्या है? ये जो ब्राह्मण्स लिखे जाते हैं उनका कॉन्क्लूडिंग पार्ट बोला जाता है आरण्यका. मतलब एकदम लास्ट में आएंगे ब्राह्मण्स के. और उपनिषद क्या होते हैं? ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं. इनको वेदांत बोला जाता है क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं. ओके. जब वेद शुरू करते हैं तो एकदम एंडिंग में जो चीज़ आती है उसको हम उपनिषद्स बोलते हैं. और 108 उपनिषद्स हैं. और सबसे जो ओल्डेस्ट उपनिषद है वो है बृहदारण्यक. ओके. बृहदारण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद. बृहदारण्यका. ओके. नाउ moving on to next part. See, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये जो 6 स्कूल्स है इंडियन फिलोसफी के, जिनको हम षड दर्शन भी बोलते हैं, ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी और इनके फाउंडर इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले है सांख्य दर्शन, जिसके फाउंडर हैं कपिल, और इन्होंने सांख्य सूत्र दिया था. ओके. तो सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है? कपिल. योग दर्शन के कौन है? पतंजलि, एज यू ऑलरेडी नो. न्याय दर्शन इज अक्षपद गौतम. वैशेषिका इज उलूक कन्नड़. मीमांसा बाय जैमिनी एंड वेदांत बाय वेदारण्य. ओके. अब देखिए, अब डिवीजन हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड. अब अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 BC है. पूरा वैदिक पीरियड वाज अप टू 600 BC, और ये जो अर्ली वैदिक है वो 1000 BC तक है, और जो लेटर स्टार्ट होगा वो 1000 से 600 BC तक चलेगा. तो अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो इसका जो सोर्स है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, तो वो ऋग्वेदा ही है. ऋग्वेदा एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है इस पीरियड के बारे में. ओके. अब देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपको क्या क्या लर्न करना है. ऋग्वेदा में 40 रिवर मेंशन है, ये नहीं याद करना है. Rigveda people who called themselves Aryans were confined in the area which came to be known as Sapta Sindhu, that is land of 7 rivers. Sapta Sindhu comprises Sindhu and their 5 tributaries. ओके. तो सप्त सिंधु क्या है? देखिए, ऋग्वेदिक जो पीपल थे ना, वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्यंस बोलते थे. और ये लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु में, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स. और वो 7 रिवर्स कौन सी हैं? एक तो है आपकी सिंधु और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, यानी कि वितास्ता, अशीकनी, विपास, परुष्णी, सुत्वाद्री और सरस्वती इज द 7th रिवर. ओके.
नाउ देयर इज अ मेंशन ऑफ दशराजन वॉर. आपको बस यही याद रखना है कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, जो फेमस बैटल हुआ था वॉज द इंटरनिसीन वॉर ऑफ आर्यंस. ये जो वॉर हुआ था अगेंस्ट शूदास हु वॉज भरत किंग ऑफ त्रिशूस फैमिली. तो ये आपको याद नहीं रखना है. ओके ये नहीं याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, इसको नहीं पढ़ना है आपको. अब हम अगर सोसाइटी की बात करें, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी सोसाइटी थी वो हम पढ़ेंगे. तो जो कुल है यानी कि फैमिली है, इट वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अबव द कुल वर द ग्राम, ग्राम हुआ करता था, विश हुआ करता था, जन हुआ करता था और फिर राष्ट्र हुआ करता था. ओके अ ग्रुप ऑफ कुल फॉर्म्ड अ ग्राम एंड सो ऑन. तो देखिए हुआ कैसे करता था. सबसे पहले सबसे लोएस्ट यूनिट क्या थी, फैमिली थी. ओके सबसे लोएस्ट फैमिली, उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ग्राम यानी कि विलेज बनाती थी. उसके बाद बहुत सारे विलेज मिलकर एक क्लैन बनाते थे यानी कि विश जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद बहुत सारे क्लैन मिलकर जन द पीपल, और अंत में होता था राष्ट्र. ओके और इन सब के हेड कौन होते थे, जैसे कुल का हेड कौन था, कुलाप, ग्राम का ग्रामिनी, विश का विशपति, जन का गोपति और राष्ट्र का राजन. तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी उसका सेग्रीगेशन किया हुआ था. और जो फॉर्म था गवर्नमेंट का वो बेसिकली पेट्रियार्कल था. पेट्रियार्कल का मतलब कि मेल डोमिनेशन ज़्यादा था अर्ली वैदिक सोसाइटी में. मोनार्की वॉज नॉर्मल, लेकिन नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज वर ऑल्सो देयर. ओके राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय अ किंग और राजन एंड द रॉयल डिसेंट वॉज बाय हेरिडिटरी बेस्ड. ओके तो ये आपको सोसाइटी के बारे में याद रखना है. ये ऑर्डर आपको याद रखना है किस तरीके का ऑर्डर था. नाउ द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड 4 वर्नास. 4 वर्नास में जैसा कि अभी भी है वो डिवाइडेड थी, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र. और ये जो क्लासिफिकेशन था वो इट वाज बेस्ड अपॉन द प्रोफेशंस, जिस टाइप के लोग प्रोफेशन किया करते थे उस टाइम पर, या फिर ऑक्यूपेशन था जैसा उनका, उस टाइप से ये क्लासिफिकेशन दिया गया है. जो टीचर्स और प्रीस्ट थे उनको ब्राह्मणास बोला गया. रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जो लड़ाइयाँ करने जाते थे, उनको क्षत्रिय बोला गया. जो किसान, मर्चेंट, बैंकर्स होते थे उनको वैश्य बोला गया. और जो लेबर क्लास थी और जो आर्टिसंस थे उनको शूद्र बोला गया. ओके अब देखिए क्या क्या प्रीवेलेंट नहीं था. चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वोक. चाइल्ड मैरिज इतनी प्रेवेलेंट नहीं थी. द विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड. तो विडो रीमैरिज भी प्रीवेलेंट थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में. द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन. राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स. And basically milk and its product, curd, butter and ghee formed an important part of the diet. There is also mention of grain cooked with milk. The meat of fish, birds and animals were eaten. The cow was already deemed aghanya, that is not to be killed. Okay, अघन्य माना जाता था, यानी कि काव को नहीं मारा जा सकता था उस टाइम पर. ऋग्वेदा prescribes a penalty of death or expulsion from the kingdom to those who kill or injure cows. Alcoholic drinks were also consumed. Aryans were primarily agriculture और pastoral. अर्ली वैदिक सोसाइटी में एग्रीकल्चर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना कि वहाँ के लोग एनिमल्स को प्रेफर किया करते थे. पेस्टोरल सोसाइटी थी. पेस्टोरल पीपल हु रेकन देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउ. जिसके पास जितनी ज़्यादा काउस थी वो उतना ज़्यादा वेल्दी माना जाता था. और एग्रीकल्चर का इतना मेजर रोल नहीं था अर्ली वैदिक सोसाइटी में. रिलीजन कैसा था. ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम्स द गॉड्स वर्शिप व जनरली द पर्सोनिफाइड. जो नेचर था ना उसकी पूजा की जाती थी, उन्हीं को भगवान मान लिया जाता था. ओके फॉर एग्जाम्पल देयर वर नियरली 33 गॉड्स, जैसे कि अग्नि. अग्नि इज लाइक नेचर, राइट. पृथ्वी, सोम, बृहस्पति. सो जो नेचुरल थिंग्स थी उनको भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती थी. ओके
What type of economy they followed? The Aryans crossed the nomadic stage, मतलब वो नोमैडिक स्टेज में नहीं थे. पहले आर्यंस क्या थे, घूम घूम कर यहाँ पर सेटलमेंट बना ली, फिर कहीं दूसरी जगह चले गए. अब वो नोमैडिक स्टेज से बाहर आ चुके थे, लेकिन फिर भी अभी वो कैटल को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. ओके, वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. ऑल्दो वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, नोमैडिक स्टेज से बाहर आ चुके थे, बट स्टिल दे गेव इम्पॉर्टेंस टू कैटल एंड नॉट एग्रीकल्चर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी जितनी कैटल की थी, लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. जो वैदिक पीपल थे, दे वर नॉट फेमिलियर विद कैट एंड कैमल. टाइगर वॉज नॉट नोन, बट द वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, बोर वर नोन टू देम. और जो ट्रेड था, जैसे कि आईवीसी में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था, ट्रेड काफ़ी फ्लरिशिंग था, लेकिन इस टाइम पर ट्रेड इतना नहीं था. अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, 1000 से 600 बीसी में ज्योग्राफिकल एरिया क्या है. ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया. अब इनका एरिया बढ़ गया था थोड़ा सा. द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गैंजेस. सरस्वती तक जो सीमित था वो गैंजेस तक बढ़ गया था. और इसके अलावा जो लेटर वैदिक पीरियड में है, कुछ और रिवर्स के भी नाम मेंशन थे, जैसे कि नर्मदा, शदनीरा, चंबल एटसेट्रा. और जो एक्सपेंशन था पीपल का टुवर्ड्स द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन अ लेजेंड ऑफ सतपथ ब्राह्मण. हाउ विदेह माधव माइग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती रीजन, क्रॉस्ड सदानीरा एंड केम टू द लैंड ऑफ विदेह. ओके, और इस टाइम पर ना जनपद की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. इमर्जेंस ऑफ जनपदास. कुरु, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरु एंड भारतास, पंचाल, काशी एटसेट्रा. लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन विंध्या माउंटेन. Reference to the territorial divisions. The later Vedas gives 3 broad divisions of India. Later वैदिक जो पीरियड है उसमें इंडिया के 3 डिवीजन दिखाए गए. आर्यवर्त यानी कि नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ यानी कि सदर्न इंडिया. ओके, तो पॉलिटी कैसी हुआ करती थी इस टाइम की. Okay, we will end it here because we will revise what we have studied till now so that you do not forget anything, right? पता चले हम आगे बढ़ रहे हैं एंड आप पीछे का भूलते जाएं, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने क्या पढ़ा था उसमें. सबसे पहली चीज़ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पढ़ी है कि इसका टाइमलाइन क्या है. इट्स टाइमलाइन इज 2500 BC टू 1750 BC, राइट. और जॉन मार्शल ने ये नेम सजेस्ट किया था. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही है. और क्या हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा, मोहनजोदारो और जो चान्होदारो है ये तीनों पाकिस्तान में है, बाकी जितनी भी साइट्स हैं वो इंडिया में है. हड़प्पा रावी पर है, मोहनजोदारो इंडस पर है और चान्होदारो भी इंडस पर है. पोर्ट सिटी आपकी जो लोथल है वो गुजरात में है, जो कि भोगावा रिवर पर है. कालीबंगा घग्गर रिवर पर राजस्थान में, बानावली घग्गर हरियाणा में और धोलावीरा ऑन रिवर लूनी गुजरात. ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ी थी, मोहनजोदारो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी साइट है आईवीसी की. ओके, और राखीगढ़ी इंडिया में सबसे बड़ी साइट है आईवीसी की. मेजर सिटीज़ यानी कि जो आईवीसी की जो फीचर्स थे वो ये थे कि उनका जो ग्रिड सिस्टम पैटर्न था इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव. उस टाइम पर ग्रिड सिस्टम उन्होंने फॉलो किया था, सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स. बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, और फोर्टिफाइड सिटाडेल थे. सुरका टोड़ा जो कि इकलौता ऐसा साइट है जहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं. ओके, लायन वहाँ के लोगों को नहीं पता था. ओके, मोस्टली एनिमल्स के बारे में उनको नॉलेज थी, लेकिन लायन के बारे में नॉलेज नहीं थी आईवीसी के लोगों को. ट्रेड काफ़ी फ्लरिशिंग था दूसरे कंट्रीज़ के साथ. ओके, ये सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. ओके,
लोथल कहाँ पर, अभी हमने पढ़ा था गुजरात में था, और एक एंशियंट पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पशुपति महादेव की ये लोग पूजा करते थे, और इनकी जो सील्स थी या फिर कॉइन्स थे उन पर पशुपति महादेव की इमेजेस भी थी। स्टेलाइट जो था वो मेनली यूज़ किया जाता था, जो सील्स होती थी उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर हमने पढ़ा था वैदिक कल्चर, जो कि 1500 BC से 600 BC तक है। कमिंग ऑन टू वैदिक लिटरेचर, हमने 4 जो लिटरेरी प्रोडक्शंस थी वो पढ़ी थी, यानी कि संहिता या फिर वेद, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषद। संहिता वेद 4 वेद हमने पढ़े थे। ब्राह्मण्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। आरण्यकास जो फॉरेस्ट के स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए होता था, और उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं, जो कि वेदों के अंत में आते हैं। ओके, और वेदों को कैसे ट्रांसफर किया जाता था? थ्रू वर्बली इनको ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है वो वेद है। वेद को हम अपौरुषेय बोलते हैं, क्योंकि इसको माना जाता था कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है, ये गॉड गिफ्टेड है। वेद जो है वो गॉड गिफ्टेड है। 4 वेद हमने पढ़े थे, ऋग, सम, यजुर और अथर्व। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें 1028 हाइम्स हैं और 10 मंडल्स हैं। समवेद क्या है? इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो समवेद है। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं, और अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मुलेज हैं। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जो 6 स्कूल्स थे फिलोसफी के वो हमने पढ़े। फिर हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा, जो ज्योग्राफिकल एरिया था। ऋग्वेद एकमात्र सोर्स है जिसके बारे में, जिससे हमें पता चलता है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। और जो अर्ली वैदिक जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे? सप्त सिंधु में, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था जो पॉलिटी थी वो कैसी थी, यानी कि सबसे पहले फैमिली आती थी, यानी कि कुल, फिर ग्राम यानी कि विलेज, फिर विश, फिर जन, और फिर आता था आपका राष्ट्र। और बेसिकली यहाँ की सोसाइटी कैसी थी? 4 फोल्ड डिवीजन था इस सोसाइटी में, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इकोनॉमी कैसी थी? मेनली पेस्टोरल इकोनॉमी थी। और यहाँ के लोगों की जो वेल्थ थी उसका मेजर कैसे किया जाता था? थ्रू नंबर ऑफ कैटल्स दे हैव, ना कि उनके पास कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है। तो बेसिकली उनकी जो वेल्थ थी वो उनकी कैटल थी, और ये पेस्टोरल सोसाइटी थी अभी तक। लेटर वैदिक में ये पेस्टोरल सोसाइटी नहीं रही थी, लेकिन अर्ली वैदिक में उनकी जो वेल्थ थी वो काउस थी। ओके, ट्रेड इतना फ्लरिशिंग नहीं था इस टाइम पर। ओके, सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक पीरियड से। ओके